Solution of our differential equation. What is solution of our differential equation? तो इसके बारे में पढ़ना है. Solution of a differential equation means to find the relation between the dependent and independent variables. In other words, we can say an equation having dependent variable say y and independent variable say x and free from derivatives satisfying given differential equation is called solution or integral of differential equation. By putting the relation, that is the equation, and its derivatives, we get an identity. तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन एक रिलेशन होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और इसी रिलेशन को और इसके डेरिवेटिव्स को अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें एक आइडेंटिटी मिलेगा. तो इसको वाज़े करने के लिए अब हम एग्जांपल देखते हैं कि ये जो यहाँ पे जो हमने डिफिनीशन पढ़ा आया, नीचे वाला एग्जांपल इसी डिफिनीशन के मुताबिक में इसका बिहेवियर क्या है. तो अब हम देखते हैं कि जो सल्यूशन होता है आया वो हमें आइडेंटिटी देता है कि नहीं. शो दैट y is equal to x square plus cx is a solution of this differential equation. This is a differential equation and this relation we have to prove that this relation is a solution. तो ये रिलेशन इसी का सल्यूशन होगा अगर यहाँ पे हम इसी को पुट करें और इसकी डेरिवेटिव को पुट करें तो ये हमें आइडेंटिटी देता है कि नहीं. तो लेट्स स्टार्ट. y is equal to x square plus cx, differentiating both sides we get y dash is equal to x square will be equal to 2x and cx, derivative of cx is equal to c. Putting values of y and y dash in 1. Now we have to put value of y dash and y in this equation. If we get an identity, then we will say that this relation is a solution of this equation. This will be the general solution of this equation. This is value of y dash and it is value of y. These two terms are value of y. Simplifying, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे cx और दोनों का एडिशन 2x स्क्वायर. अब ये एक आइडेंटिटी है. नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी, hence this relation, this given relation is a solution of the given differential equation. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, एक डिफरेंशियल इक्वेशन था और एक रिलेशन था, और हमने ये साबित करना था कि ये रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है कि नहीं. तो हमने वो रिलेशन लिया, वो इक्वेशन लिया, उसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशियल इक्वेशन में मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट किया तो हमें आइडेंटिटी मिला. तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है ये दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है. अब एक दूसरा एग्जांपल है. शो दैट दिस इक्वेशन इज़ अ सलूशन of this differential equation. This is differential equation and this is a relation between dependent variable y and independent variable x. We have to prove whether equation 1 is a solution of equation 2 or not. So let's start. This is y. Now differentiating, this is the derivative of both sides. Now differentiating again, so this is another derivative. Putting values of y, y dash and y double dash in a given differential equation 2. Putting value of y, y double dash in this equation, we get value of y double dash. Value of y double dash is equal to, this is value of y double dash and we have to put here. So this is the value. Now y, value of y, this is value of y and we have to substitute here. So this is value of y and 2e power minus x is here. Now simplifying, 2e power minus x is equal to 2e power minus x. This is an identity, hence equation 1. This is equation 1, hence equation 1 is a solution of 2. तो यहाँ पे एक
रिलेशन था और एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, हमने साबित किया कि ये जो रिलेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो here we see that this relation or this equation have independent variable x and having dependent variable y. Moreover, there is no derivative here and also it satisfies the differential equation. So equation 1 is the general solution. So equation 1 is the solution of equation 2. फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द ऑर्डिनरी इक्वेशन एंड एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। किसी भी रिलेशन को डिफरेंशिएट करने से और उसी रिलेशन में कांस्टेंट को एलिमिनेट करने से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द ऑर्डिनरी इक्वेशन एंड एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ रिलेशन where we see the arbitrary constant a, differentiating both sides with respect to x, so this y will become dy by dx, and differentiation of right side ax will be equal to a, and the root of a square with respect to x will be 0. The root of a square will be 0, and the root of ax is equal to a into dx by dx is equal to a into 1 is equal to a. dy by dx is equal to a. Now putting dy by dx is equal to a and 1. This is equation 1, and we have to put value of a. This is value of a. We get y is equal to, put value of a, which is dy by dx. This x is again here, and value of a is dy by dx whole square. So finally we get x dy by dx plus dy by dx whole square. Y is equal to this thing. तो ये क्या है? दिस इज गिवन रिलेशन एंड दिस इज द associated differential equation. Eliminating one constant a, we get first order differential equation. यहाँ जो टॉपिक है, एक रिलेशन हमारे पास होगा और उसी रिलेशन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो रिलेशन को डिफरेंशिएट करने से और रिलेशन में मौजूद कांस्टेंट को एलिमिनेट करने से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें एक कांस्टेंट है, तो अगर इसी रिलेशन को हम डिफरेंशिएट करें तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिलती है। अब ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे पुट करें तो हमें ये इक्वेशन मिलता है, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कांस्टेंट 1 है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला। तो किसी भी रिलेशन में जितने भी नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे उतना ही तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें उतनी ही ऑर्डर का मिलेगा। अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट 1 हो तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 हो तो हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये एक रिलेशन है और इसी रिलेशन में दो कांस्टेंट है ए और बी है। तो इसी रिलेशन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ये वाला, दिस इज अ रिलेशन एंड दिस इज द corresponding differential equation. Here number of constant are 2. A and B are the two constant, and thus we will get second order differential equation. जितनी भी कांस्टेंट होंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन उतनी ही ऑर्डर वाला मिलेगा। अब इसी से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो डिफरेंशिएट करने से और कांस्टेंट को एलिमिनेट करने से हमें मतलूबा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ हमने ऑपरेटर लगाया। अब वो a का डेरिवेटिव ये आ गया, b साइन का डेरिवेटिव ये आ गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अब हम
डी वाई बाई डी एक्स और इसी साइड को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमें सेकंड ऑर्डर में देगा और इसी के साथ हमने ऑपरेटर लगाया। अब फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन यही है, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन यही है, दोनों से हम माइनस निकालते हैं। अब ये वाला ब्रैकेट में जो है, ब्रैकेट में हमें क्या मिला, ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट, दिस वैल्यू इज़ इनसाइड द ब्रैकेट विच इज़ इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हम y पुट करेंगे। अब इसी y को हम लेफ़्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास मतलूबा डिफरेंशियल इक्वेशन। एलिमिनेटिंग द टू, यहाँ पे दो कांस्टेंट है तो एलिमिनेटिंग द टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स a एंड b वी गेट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रिलेशन। किसी भी दिए हुए रिलेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हम किस तरह बनाएंगे, डिफरेंशिएशन करने से, डिफरेंशिएट करने से और कांस्टेंट एलिमिनेट करने से। जितनी भी कांस्टेंट होंगे उतनी ही ऑर्डर वाला हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। एग्जाम्पल एट पेज 361 फाइंड। अब ये जो हमारे पास बुक है, टेक्निक वाला बुक है, 361 पे ये एक एग्जाम्पल है, इसी को हम हल कर रहे हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास। अब यहाँ पे एक डिफरेंट रिलेशन है, दिस इज़ अ रिलेशन और हमने मालूम करना है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास। तो इसी से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब दोनों साइड को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होता है, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 2y dy बाई dx। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y dy बाई dx और 4a अपनी जगह पे और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 4 डिवाइड बाई 2 आ गया, ये y इसके साथ है और ये a यहाँ पे है। अब इसी a की वैल्यू ऑफ a हम यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे a है तो a की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4x, यहाँ से a की वैल्यू है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4x तो ये आ गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 2x गिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व 1। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है और इसी पैराबोला के कर्व के किसी नुक्ते पे जो टेंजेंट गुजरता है तो इसकी वैल्यू है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 2x। अब इसी रिलेशन से हमने बनाया एक डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फील्ड ऑफ पैराबोला। तो इसी पैराबोला से हमने मुतअल्लिक़ा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया और यहाँ पे जो रिलेशन है ये हमें स्लोप देता है, दिस गिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व 1। सोल्यूशन। अब हमारे पास यहाँ जो टॉपिक है सोल्यूशन, हमने तो 2-3 स्लाइड में सोल्यूशन पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक रिलेशन होता है और उसी रिलेशन से हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था। तो उसी रिलेशन को डिफरेंशिएट करने से और वहाँ पे मौजूद कांस्टेंट को एलिमिनेट करने से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता था। अब वो एक रिलेशन ये साबित करना है कि एक रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है कि नहीं, तो उसी को जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया और इसके डेरिवेटिव को पुट किया तो हमें आइडेंटिटी ये देगा। किसी भी रिलेशन को हम सलूशन कहेंगे अगर इसमें डेरिवेटिव ना हो और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमें आइडेंटिटी देगा। तो ये टॉपिक हमने पढ़े। अब ये मज़ीद हम पढ़ रहे हैं सलूशन, तो हमने कुछ न कुछ पढ़ा, अब मज़ीद हम सलूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जनरल सलूशन क्या है, पार्टिकुलर सलूशन क्या है, सिंगुलर सलूशन क्या है
अब कंडीशन क्या है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल सोल्यूशन। द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग एज मैनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट प्रिमिटिव। जनरल सोल्यूशन क्या होता है? द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन containing as many arbitrary constants as the order of a differential equation is called general solution or complete primitive। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है तो उसी सोल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट उतनी ही होंगे जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इसके सोल्यूशन में 1 कांस्टेंट होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा तो इसके सोल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 होंगे। तो जनरल सोल्यूशन यही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सोल्यूशन जहाँ पे कांस्टेंट होंगे और इसी में डेरिवेटिव्स नहीं होंगे तो इसको हम जनरल सोल्यूशन कहेंगे। जनरल सोल्यूशन को हम कंप्लीट प्रिमिटिव भी कहते हैं। पार्टिकुलर सोल्यूशन से क्या मर्द है? इफ़ वी पुट वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट in a general solution we get particular solution। जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट होते हैं और अगर कांस्टेंट की वैल्यू हम किसी तरीके से मालूम करें और जनरल सोल्यूशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमें पार्टिकुलर सोल्यूशन देगा। इफ़ वी पुट वैल्यूज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन आ जनरल सोल्यूशन वी गेट पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब सिंगुलर सोल्यूशन क्या है? A solution which cannot be obtained from the general solution is called a singular solution। Particular solution ये हम general solution से हम हासिल करते हैं। हमारे पास कंडीशन होता है, जब जनरल सोल्यूशन हम मालूम कर लेंगे और कंडीशन यूज़ करें तो हमें वैल्यू ऑफ कांस्टेंट मिलती है। कांस्टेंट को जब हम जनरल सोल्यूशन में पुट करते हैं तो हमें पार्टिकुलर सोल्यूशन मिलता है। अब अगर जनरल सोल्यूशन, अब अगर हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन हो जो जनरल सोल्यूशन से नहीं मिलता हो तो इस किस्म के सोल्यूशन को हम सिंगुलर सोल्यूशन कहते हैं। दैट सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सोल्यूशन। अ सोल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन इज कॉल्ड अ सिंगुलर सोल्यूशन। तो यहाँ पे 3 किस्म के सोल्यूशन हो गए। जनरल सोल्यूशन जिसमें कांस्टेंट होंगे और कांस्टेंट की तादाद उतनी ही होंगे जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कंडीशन हो और कंडीशन की मदद से हम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर ले और जनरल सोल्यूशन में पुट करें तो हमें पार्टिकुलर सोल्यूशन मिलता है। अब अगर एक ऐसा सोल्यूशन हो जो हमें जनरल सोल्यूशन से नहीं मिल रहा हो तो ऐसी सोल्यूशन को हम सिंगुलर सोल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ नीचे हम आते हैं कंडीशन। तो सबसे पहला वाला जो कंडीशन है इनिशियल कंडीशन। द कंडीशंस विच रिलेट टू 1 x वैल्यूज आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशन। वो कंडीशन जहाँ पे x की वैल्यू सेम हो तो ऐसी कंडीशन को हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हमें वैल्यूज दिए गए हैं। y की वैल्यू a है जबकि x की वैल्यू x0 है। यहाँ पे y डैश की वैल्यू a है जबकि x की वैल्यू x0 है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है दोनों, यहाँ पे जो 2 वैल्यूज़ है दोनों में x की वैल्यू सेम है, यानी x0, x की वैल्यू यहाँ पे x0 है और यहाँ पे भी x0 है जबकि दीगर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन को हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं। इनिशियल कंडीशन, बाय द इनिशियल कंडीशन वी मीन द कंडीशन वेयर वी हैव सेम वैल्यू ऑफ x। तो ये इनिशियल कंडीशन हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोज डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग इनिशियल कंडीशंस आर कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके साथ इनिशियल कंडीशन हो तो ऐसी प्रॉब्लम को, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम, इट इज दैट डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर वी हैव इनिशियल कंडीशन।
और इनिशियल कंडीशन हमने पढ़ा, इनिशियल कंडीशन में x की वैल्यू सेम रहती है। बाउंड्री कंडीशन क्या है? द कंडीशंस विच रिलेट्स टू टू डिफरेंट x वैल्यूज आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस। अब यहाँ पे ये एक कंडीशन है जहाँ पे x की वैल्यू मुख्तलिफ है, x0 और x1, these two are different value of x, so this condition is called boundary condition. Similarly, here we have another condition where we see different value of x. The first value of x is x0, the second value is x1. So whenever we have different value of x, then that condition is called boundary condition. So this is a boundary condition. Similarly, this is also a boundary condition. अब यहाँ पे in this case and in this case, in both the cases the value of x is x0 and x1. The differential equation together with boundary condition are called boundary value problem. Boundary value problems are those problems, these are those differential equations where we will have boundary condition. जिस प्रॉब्लम में जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ बाउंड्री कंडीशन हो तो ऐसी प्रॉब्लम को या ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। अब ये एक एक्सरसाइज है, शो दैट ईच फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक रिलेशन है और यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये देखना है कि ये रिलेशन इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। शो दैट ईच फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब एक वैल्यू ऑफ वाई यहाँ पे है, वैल्यू ऑफ वाई डैश यहाँ पे है, पुटिंग वैल्यूज फ्राम 1 and 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो वैल्यू 1 वैल्यू 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देख ले एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो वाई डैश की वैल्यू नंबर 3 से यहाँ पे हमने पुट किया, वैल्यू ऑफ वाई को नंबर 1 से हमने यहाँ पे पुट किया। अब दोनों साइड को सिंप्लीफाई करें तो ये हमें एक आइडेंटिटी मिला। दस इक्वेशन 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। कोई भी any relation can be a solution of the differential equation if it has no derivatives, and moreover if we put the relation and differential equation we will get a identity. अब यहाँ पे एक दूसरा रिलेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको चेक करना है कि ये रिलेशन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन यही है, डेरिवेटिव ऑफ c बाई एक्स ये आएगा। यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव की हुई है तो डेरिवेटिव ऑफ c डिवाइड बाई एक्स आएगा माइनस c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा है, वाई डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ c डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डैश की वैल्यू हमने मालूम किया और वैल्यू ऑफ वाई ऑलरेडी हमें गिवन है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, वैल्यू एट 1 एंड वैल्यू एट 3, अब हम नंबर 2 में पुट करेंगे। तो देखते हैं, पुटिंग वैल्यूज़ फ्राम 1 and 3 and 2। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ वाई और वैल्यू ऑफ वाई डैश यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पुट करना है, वैल्यू ऑफ वाई डैश यही है, वैल्यू ऑफ वाई यही है, तो 1 इक्वल टू 1 ये एक आइडेंटिटी है। देयरफॉर इक्वेशन 1 द रिलेशन 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 2। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ये रिलेशन 1 इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। या इसी y को और इसके डेरिवेटिव को हमने यहाँ पे पुट किया, हमें आइडेंटिटी मिला, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन इसी का सॉल्यूशन है।
अब यहाँ पे देखिए ये एक रिलेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब वैल्यू ऑफ y और वैल्यू ऑफ y डैश को हमने यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे y डैश की वैल्यू हमने मालूम किया है, यहाँ पे पुट किया है, y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है। वैल्यू ऑफ y क्या है ये, तो अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये 9 10 स्क्वायर 3x आएगा। अब दोनों से हम 9 कॉमन निकालते हैं, 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर को हम सीकेंड स्क्वायर कहते हैं। तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है 9 सीकेंड स्क्वायर 3x और राइट साइड को हमने सिंप्लीफाई किया, दोनों वैल्यू सेम है। तो ये एक आइडेंटिटी हो गया। या हम इस तरह कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ y डैश हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है, 9 अपनी जगह पे और वैल्यू ऑफ y यहाँ पे है। अब दोनों 10 स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया। अब इसी रिलेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम जिस तरह हमें ये मिला तो सेकंड मेथड में भी हमें मिलता है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो ये एक आइडेंटिटी है, तो हम कहेंगे कि ये वाला इसी का एक सोल्यूशन है। यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं तो आप इसको देख ले, टेंजेंट का फार्मूला क्या है और टेंजेंट x का क्या है, टेंजेंट 3x का क्या है। इसके अलावा 1 + 10 स्क्वायर x किसके बराबर है। तो ये रिजल्ट्स है, ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। अब ये एक रिलेशन है और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें y डैश की ज़रूरत है, जो हम यहाँ से मालूम करेंगे। y डबल डैश की ज़रूरत है तो यहाँ से मालूम करेंगे। y है तो y यहाँ पे है। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि ये आइडेंटिटी देता है कि नहीं। तो अब ये इसी रिलेशन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट 1। तो हमने इसी को डिफरेंशिएट किया तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गई। इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो ये दोबारा डिफरेंशिएट इसकी सेकंड डेरिवेटिव आ गई। अब y डैश और y डबल डैश की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं इन 2 में वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो y डबल डैश और y की वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट किया और 3 - 2x स्क्वायर यहाँ पे। अब यहाँ पे वो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। अब यहाँ पे अगर हम इसको गौर से देख ले तो ये कैंसलेशन हो गया और प्लस माइनस होगी। तो यहाँ से हमें ये मिलता है और ये ऑलरेडी राइट साइड यहाँ पे मौजूद है। तो ये एक आइडेंटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन 1 जो है ये रिलेशन 2 का, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का क्या है, सोल्यूशन है। नंबर 1 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ 2। अब यहाँ पे ये फार्मूले हमने यूज़ किए हैं कि e पावर x का फार्मूला डेरिवेटिव ये ही, e पावर -2x का डेरिवेटिव क्या है, e पावर -2x और -2x का डेरिवेटिव -2 है। तो इसका जो फाइनल डेरिवेटिव है वो यही है। अब ये एक रिलेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसी से हमने y डैश मालूम करना है, y डबल डैश मालूम करना है। तो जब ये सारे वैल्यूज़ हम मालूम करते हैं तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम इसको पुट करते हैं तो ये हमें 0 = 0 ये आइडेंटिटी देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन इसी का सोल्यूशन है। तो हमने इसको इसी को साबित करने के लिए हमने y डैश मालूम करना है जो कि ईजी है, y डबल डैश मालूम करना है वो भी ईजी है। उन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने दर्ज करना है और देखना है कि लेफ़्ट साइड इक्वल राइट है कि नहीं। तो अगर है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक रिलेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे y डबल डैश है, y डैश है और y है। तो इसी रिलेशन को हम एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश हमें देगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश हमें देगा। तो y और y डैश और y डबल डैश की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ पे हम पुट करेंगे और फिर हम रिज़ल्ट देखेंगे। तो ये देखिए अगर दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करें तो ये इजी है, हमें ये मिलता है, कुछ सिंप्लीफिकेशन है तो ये मिलता है और 3 कैंसिल हो गए तो ये मिलता है। अब अगर हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट करें तो ये सिंपल है, इसको हम गौर से नहीं पढ़ रहे हैं, ये इजी है, लिहाजा इसको आप गौर से ख़ुद पढ़ें। तो ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैल्यू ऑफ y डबल डैश यहाँ से हमने यहाँ पे पुट किया, वैल्यू ऑफ y गिवन रिलेशन है ये अपनी जगह पे, और y डैश की वैल्यू यहाँ से हमने पुट किया। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमें 0 देता है और ये ऑलरेडी 0 है। तो ये एक आइडेंटिटी है, हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पे एक रिलेशन है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चेक करना है कि ये इसी का
सोल्यूशन है। तो यहाँ से y डैश मालूम करना है और फिर यहाँ पे पुट करना है। तो ये रिलेशन 1 है, डिफरेंशिएटिंग 1। तो दोनों साइड को के साथ हमने ऑपरेटर लगाया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ गया और सेकंड का डेरिवेटिव कोशेंट रूल। यहाँ पे हमने कोशेंट रूल यूज़ किया, डेरिवेटिव कहाँ से 0 है। अब इसी को मुख्तसर किया और फर्दर यहाँ से हमने क्या कहा, इसी से और इसी से फर्स्ट और लास्ट से हमने y डैश निकाला और ये मिडिल टर्म हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन है, तो यहाँ से y डैश निकाला। अब यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन आ गया, ये आ गया और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये माइनस हम नीचे यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं तो ये आ गया। अब y डैश हमारे पास है, y डैश हमें ज़रूरत थी तो हमने मालूम किया y ऑलरेडी हमारे पास है। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड 2, y और y डैश की वैल्यू नंबर 2 में हम पुट करते हैं। तो जब हमने नंबर 2 में पुट किया तो 0 आइडेंटिटी आ गया। दस इक्वेशन 1 इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ 2। यहाँ पे y क्या है, y माइनस एक्स आ गया, y डैश की वैल्यू ये आ गया, y अपनी जगह पे। बाज़ औक़ात हम y की वैल्यू पुट करते हैं, बाज़ औक़ात पुट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सिम्प्लिफिकेशन है। अब यहाँ पे हमने y को अपनी एज इट इज़ रखा और वैल्यू ऑफ y डैश हमने पुट किया, कौन सिम्प्लिफिकेशन किया तो 0 आ गया, एक आइडेंटिटी है, लिहाजा ये वाला इसका जनरल सोल्यूशन है। अब यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन है, वैल्यू ऑफ x है इन टर्म ऑफ t, वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ t है और ये डिफरेंशियल है। इक्वेशन 1, ये दोनों इक्वेशन 1 है, इज़ अ पैरामीट्रिक सेट ऑफ इक्वेशंस वेयर t इज़ पैरामीटर डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये दोनों साइड को हम अगर विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें तो dt बाई dt 1 आता है तो 4 आ गया, डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t 0 आ गया। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट करते हैं तो t स्क्वायर से 2t आता है और ये 0 होगा। बाई चेन रूल तो dy बाई dx बराबर होता है इसी का। अब dy बाई dt की कीमत हमने पुट किया और dy बाई dt बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t 4 है तो dt बाई dx 1/4 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ y डैश, तो dy बाई dx मीन्स y डैश, इसकी वैल्यू t/2 है और वैल्यू ऑफ y भी यही है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ y डैश एंड y एंड 2, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं y डैश की वैल्यू क्या है t/2 और वैल्यू ऑफ y ये है। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, आइडेंटिटी आ गया। इक्वेशन 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ 2, ये वाला इसी का सोल्यूशन है, ये पैरामीट्रिक है। अब यहाँ भी क्या है, चेक करना है कि ये रिलेशन इसी का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हमने u को ट्वाइस डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू y करना है और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग u विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को हम एज कांस्टेंट कंसिडर करेंगे और x को ऑपरेट करेंगे। तो x को हमने यहाँ पे ऑपरेट किया, यहाँ पे हमने लिखा कि ट्रीट y एज कांस्टेंट। अब दूसरी, अब इसी u को हमने एक दफ़ा x के साथ डिफरेंशिएट किया। अब अगेन विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस एंड दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आता है आल्सो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसी 1 को विद रिस्पेक्ट टू y हमने डिफरेंशिएट करना है तो x कांस्टेंट होगा, ये आ गया। अगेन डिफरेंशिएट करना है तो ये आ गया। पुटिंग वैल्यूज़ इन 2, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमें आइडेंटिटी मिला, लिहाजा ये वाला रिलेशन इसी का सोल्यूशन है। अब ये एक रिलेशन है और ये एक डिफरेंशियल है। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ y डैश मालूम करना है, y डबल डैश मालूम करना है। तो y डैश की वैल्यू इजी है, यहाँ पे हमने मालूम किया। फिर y डैश को हमने अगेन डिफरेंशिएट कर तो ये y डबल डैश की वैल्यू हमें मिला। पुटिंग वैल्यू ऑफ y डैश y डबल डैश, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ y डैश y डबल डैश की वैल्यू जब हम पुट करते हैं और यहाँ पे =0 है, कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलता है 0 दिस इक्वेशन 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। थैंक यू।